So, hello and very good evening to all. Welcome to Career Different School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about UP Sainik School exam class 9. And here we will discuss the English portion of this exam. So, पेपर बच्चे बहुत इजी था, 50 क्वेश्चंस थे और काफी इजी थे, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चे, वो हमारे पास आई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए पहले हमें क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। सो फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चे। बहुत इजी पेपर था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी आई थी। सो द सर्विस डॉग्स वर्क देखना है कि कैसे होते हैं, हाईली पेड, लेस इन नंबर, मल्टीटास्कर, मल्टीपल टास्कर और एम्प्लॉय, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, द आइडिया ऑफ असिस्टेंस dog become popular due to किस कारण से, awareness by the hospitals, independent movement among the disabled, independence of the country, both B and C. Let's see, हम इसका आंसर देखेंगे पैरा पढ़ के ही। The category of helping dogs are domestic dogs, service dog and scissors dogs. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अलग अलग कौन सी, hearing and domestic dog, service, hearing and scissor dogs. None of these. Check करेंगे हम। There is difference between the service dog and the helping dog, the service dog and the canines, and the canines and the other dogs, both B and C. फिर हमसे पूछा गया noun form of trained, बहुत easy question था। सो फटाफट से पैसेज को देख लेते हैं हम, ठीक है। So for the mobility impaired, highly trained canines called service dogs can pick up dropped key, open and close drawer, retrieve prepared meal, help a person in and out of bathtub, dial 911, push and pull, wheelchair, help operate a car or van and pull off gloves, shoes, socks, jackets. Other dogs provide specific assistance to those who suffer seizures, sudden attack of illness, and required special medication. And of course, the helping dog provide companionship, play, and give unconditional love to the people they assist. It's 30 odd years since the placement of the first assistant dog, but only in recent years, with the rising independent movement among disabled people, has the idea begun to spread widely. नेक्स्ट हमारा पैसेज नेक्स्ट स्लाइड पे है बेटा। Okay, while most service dogs are trained to work with people who rely on wheelchair, other category of helping dog includes hearing dog, which alert their owner to sounds such as doorbell, phone, cooking timers, alarm clocks, smoke alarm, scissor dogs, which carry medicine in their packs and are trained to dial 911 on large keypad phones, right? बहुत इजी पैसेज था, तो फटाफट से हम इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्विस डॉग्स आर, बहुत काम कर सकते हैं सर्विस डॉग्स, तो हमारा आंसर रहता है सी, दे आर मल्टीटास्कर, ठीक है, काफी काम कर लेते हैं वो। द आइडिया ऑफ असिस्टेंस डॉग बिकम पॉपुलर ड्यू टू किस कारण से, पैसेज में मेंशन्ड है इंडिपेंडेंट मूवमेंट अमंग द डिसेबल्ड। द कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग डॉग्स आर, कौन सी है, पैसेज में बहुत क्लियर मेंशन है सर्विस, ठीक है, हेयरिंग एंड सीजर्स डॉग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है बेटा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, किस किस में डिफरेंस है। So C, canines and the ordinary dog. C is the right answer. Noun form of trained, trained का noun form क्या होता है, trainee. Okay, D. Next हमारे पास फिर से बच्चे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया है। So let's check कर लेते हैं क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Dash in all matters, the two extremes are alike. Means powerful man always gains success,
All human beings are the same character. Boy and girl are equally talented. The extreme positive and extreme negatives are alike. अच्छा, हम assumption basis पे आंसर नहीं करेंगे, पैसेज को देखेंगे. When the sound is in low pitch, then we fail to hear it. We can hear it easily. It pleases us. We feel dizzy. Next, question number 8. Too rapid vibration of light can be easily seen, cannot be seen, should be enjoyed, both A and C. The one who resists is different from a man who doesn't resist because of किस कारण से? Nature, weakness, strength, illness. Next question number 10. The word irresistible means क्या मतलब होता है? So हम पहले पैसेज को देख लेते हैं फटाफट से. So in this passage लिखा है, this is a great lesson for all of us to learn that in all matter the two extremes are alike. The extreme positive and extreme negatives are always similar. When the vibration of lights are too slow, we don't see them, or when we nor do we see when they are too rapid. So so with the sound. When very low in pitch, we don't hear it. When very high, we do not hear it either. So, like nature, of like nature, is the difference between resistance and non-resistance. A man who doesn't resist because he is weak, lazy, and cannot, because he will not. The other man who knows that he can strike an irresistible blow if he likes, yet not only does not strike but blesses his enemy. Okay. The one who from weakness resists not commits a sin, and as such can be received any benefit from the non-resistance, while the other would commit a sin by offering resistance. इजी है, बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है. सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन का बहुत क्लियर आंसर हमारे सामने है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव्स आर अलाइक इन ऑल मैटर. द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक. हम जो लाइन लिखी गई है इसका मतलब है व्हेन द साउंड इज इन लो पिच, बहुत अगर धीमी साउंड है, देन हम नहीं सुन पाते, वी फेल टू हियर इट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. टू रैपिड वाइब्रेशन ऑफ लाइट, अगर बहुत ज्यादा हो तो भी नहीं देख पाते, कांट बी seen, right? It's B. 9. The one who resists the different from a man who doesn't resist because of weakness. Next question number B इसका आंसर था उसको होगा. 10th का resistible. What the meaning of resistible? It's C बच्ची. So strong that it cannot be stopped. राइट. दोनों ही पैसेज बहुत इजी थे, इजी टू अंडरस्टैंड थे. सो ये मार्क्स हमारे बिल्कुल नहीं जाने चाहिए. वो आप मार्क्स भी शेयर करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द करेक्ट सिनोनिम. ठीक है, करेक्ट सिनोनिम सर्विट्यूड. सर्विट्यूड मीन स्लेवरी टाइप, है ना. सो चैरिटेबल नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, स्टैच्यू नहीं होता है, इट्स bondage. Next question number 12 is reverence. So reverence का synonym क्या होता है? Reverence का synonym होता है बच्चे, reverence का मीनिंग हमारे पास हो जाता है आदर, रिस्पेक्ट. तो synonym बहुत ही क्लियर हमारे सामने है, राइट. रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट फोस्टर तो नहीं होने वाला. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रिलियस. मुझे प्रिलियस जो तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका मीनिंग हमारे पास आ जाता है जोखिम. तो प्लान्ड, अननेम, पैथेटिक नहीं होता. अनसेफ हमारा इसका बहुत ही क्लियर सा एक सिनोनियम बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 14 सैंक्टिटी, राइट. क्वेश्चन नंबर हमारा है 14. सैंक्टिटी was the synonym of this. It's holiness. बहुत ही इजी था.
ग्रीमेस, ग्रीमेस का हमारा क्या हो जाता है? हाँ जी, मुंह बनाना होता है इसका मतलब, नहीं। तो ग्लिम्स लाफ्टर नहीं होता है। स्नीर हम कह सकते हैं, है ना। तो स्नीर का मतलब हो जाता है किसी का भी हंसी उड़ाना या किसी की तरफ देख के थोड़ा मुंह बनाना, है ना। नेक्स्ट है इंसिपिड। करेक्ट, इसका क्या बताना है आपको? ऑपोजिट। ठीक है, 15 तक हमारे सिनोनियम थे, ये ध्यान रखना। 15 तक सिनोनियम थे, उसके बाद हमारे आगे एंटोनियम। ठीक है। सो इंसिपिड क्या मतलब होता है? डल, लो, टेस्टलेस। डल का हो गया अगर कोई कमजोर है, उसका होगा बहुत ही शार्प, तो हम विटी कह सकते हैं, है ना। सो बिल्कुल हमारा एंटोनियम विटी बन जाएगा। करेक्ट। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस होता है सीधा साधा, है ना, ना नुकसान पहुंचाने वाला। ऑफेंसिव हम कह सकते हैं इसका एंटोनियम बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन विनीर। राइट, क्वेश्चन नंबर 18, विनीर। सो इसका एंटोनियम बनता है हमारे पास एक्सटीरियर। राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मीनिंग होता है अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क विच। सो व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ दिस? इसका ऑपोजिट बन जाएगा कावर्डिक, डरपोक। राइट, ओके। नेक्स्ट इज सेक्रोसेंट। सेक्रो सो सैक्रोसेंट का मीनिंग क्या होता है? टू इम्पोर्टेंट, वेरी स्पेशल, है ना। तो इसका हम एंटोनियम अगर कहें तो इररिलेवेंट हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो वेरी इजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एशियन सोसाइटी हमने किया हुआ है। इट्स नॉन एज, यस, आर्कियोलॉजी। एंड जो स्टडी करता है आर्कियोलॉजिस्ट हमने पढ़ा हुआ है। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, तो उसको बोला जाता है ओलिगेसी। करेक्ट। ये सारा ग्राम ग्राम जो वोकेबलरी का पार्ट है। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एंड एपरी। ठीक है, एपरी, एपरी। नेक्स्ट, a person who speaks many languages is known as polyglot. One who, यानी कि सी, one who doesn't believe in the existence of God at his, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जंबल वर्ड। एंड जंबल वर्ड बिलीव मी बहुत इजी आए हैं। एक तो सबसे पहले तो ऑप्शन सेंटेंस फॉर्म में आ गया। इट्स, ये सबसे इजी मेथड है जंबल वर्ड का आने का। सो फर्स्ट है forget two of the leaves lights don't turn before you. So what will be the answer of this is, yes, don't forget to turn off the light before you leave. Forget to light off तो बनता नहीं, turn, don't off the light sense नहीं आ रहा है ना। To forget, don't leave before the light, turn off the, नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं बन रहे। बाकी कोई भी ऑप्शन सही सेंटेंस नहीं बना रहा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, यू मेथड विल टू गिव मदर योर प्लीज। तो ये क्या है हमारा? अगेन इसका आंसर बन जाएगा विल यू मदर मैसेज योर, नहीं आ रहा। नेक्स्ट, प्लीज योर मदर मैसेज यू विल, नहीं, ये आर्टिकल अलग अलग लगा रखा है। गिव यू अ विल, नहीं, के साथ विल कोई सेंस नहीं है। तो सीधा आंसर बन रहा है विल यू प्लीज गिव अ मैसेज टू योर मदर। हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि कौन सा रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 28, वीकली इज जर्नल दिस। सो इसका आंसर क्या रहेगा 28 का? यस, हाँ जी, जी बच्चे, इसका आंसर रहेगा ये, दिस इज द वीकली जर्नल। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड द फ्यू ऑफ नॉन ट्रिक्स देम। क्वेश्चन नंबर 29 का रहेगा
We few men know the trick of the trade. Correct? So 29 B. बिल्कुल एलिमिनेशन टेक्निक भी अगर हम फॉलो करते हैं तो भी हमारा करेक्ट आंसर हमारे सामने रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Monsoon rain much had this not have we. So we have not had much rain this monsoon. 30 का yes D बिल्कुल. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी हैव टू टेल द इडियम मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और प्रोवर्ब. ठीक है, मीनिंग बताना है हमने. सो क्वेश्चन नंबर 31. एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर. मतलब किसी की एब्सेंस में हमें उसके बारे में कि हम उसके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं ये सब फील होता है. तो 31 का आंसर हमारा बन जाता है बेटा यस. हाँ जी, आंसर इज बी बच्चे. When you are away from someone you love him even more. Cause है ना. Next, a flower blossom more than once. Question number 32. 32 का क्या है इसका आंसर? Yes, of course, A. If you miss an occasion, you will avail it at another time. Next, beauty is only skin deep. 33. 33 का आंसर बनता है बच्चे C. A person's character is more important than his her appearance, of course. Next question number 34. The bound is the place where the light enters you. इसका मतलब क्या होता है? 34 का D. Pain and suffering guides one to enlighten. ठीक है, ये जो है ना हमारी रोमी पोएम का सेंटेंस, रोमी पोएम का एक है लाइन करेक्ट, जिसमें बात की गई है द फैक्ट दैट पेन रिवील्स एंड हेल्प अस चेरिश व्हाट truly met. We can only mourn what we deeply love. नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं बच्चे. हमारे क्वेश्चन है बहुत इजी आए हैं. यहाँ देखिए, मीरा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. नाउ का चेंज करेंगे देन में तो हमें आंसर मिल जाता है कि इनमें से तो नहीं होने वाला है. सी एंड डी में से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. करेक्ट. तो सेड है, पास्ट है, यहाँ सेज लिख दिया. बी भी नहीं, मतलब मीरा सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. शी इज एमआर चेंज हुआ वॉज में वेरी बिजी देन. दैट्स इट. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36. a little bit blur है बट मैं पढ़ देती हूँ. My aunt says I am unwell. So reported verb is in present right now बच्चे. अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा. सो सेज का सेज रहेगा. यहाँ सेड दिया, यहाँ हैड दिया, गलत हो गया है ना. यहाँ पे इन्होंने टेंस चेंज. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.